तैयारियों के विषय में रखी गई है। इस कार्यशाला का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन के प्रथम सत्र में आप सभी का बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। हम इंतजार कर रहे हैं और प्रतिभागियों के जुड़ने का, ताकि हम अपना तकनीकी सत्र शुरू कर सकें। आज तीसरे दिन के पहले तकनीकी सत्र में क्राइटेरिया 3 के बारे में हमारी गेस्ट स्पीकर का वक्तव्य होगा। इस क्राइटेरिया 3 पर रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन पेन की लेक्चर डिलीवर की जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी उपस्थिति समय पर दर्ज कराएं, ताकि हम अपना तकनीकी सत्र समय से शुरू कर सकें।
Good morning, a warm welcome and a very good morning to all the participants who are connected on this platform for this third day of workshop organized by the SICA team of Madhya Pradesh Bhoj Open University. I can see around 50 participants are connected and we are waiting for more to be connected. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज तीसरे दिन की इस कार्यशाला के प्रथम सत्र में। मैडम इसमें नमस्कार। आज तीसरे दिन के पहले तकनीकी सत्र में जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सबकी बड़ी संख्या में उपस्थिति हम सबको बेहद उत्साहित कर रही है और मैं ये कामना करती हूँ कि आप सबकी उपस्थिति इस पूरी कार्यशाला को सफलतापूर्वक संपन्न करने में काफी सहायक होगी। Now I cordially invite and introduce our speaker, Madam Dr. Maya Ingle, Madam, for this technical session to speak on criteria 3. Cordially invite and introduce Dr. Maya Ingle, Madam, session to speak on criteria 3. Maya Ingle, Madam, is presently working as a senior faculty at School of Computer Sciences and Information Technology at DAVV Indore. She is also having the responsibility of Director of Kaushal Vikas Kendra, a scheme of UGC. She has a very brilliant and professional qualifications in computer science. She is a gold medalist and a visiting professor at IIIT Jabalpur and IIT Indore. A big number of research activities is also in her name. About 200 research papers, both national and international, she has done. She has been a resource person for many NAC-oriented workshops and the programs. I invite Maya Ingle, Madam, to start the technical session, which is on criteria 3. Thank you very much, Madam. Am I audible, please? Yes, ma'am, you are audible. Please. Yeah. Have you given me the permission for screen share, please? Of course, ma'am, you can share. Yeah, yeah. Okay. So first of all, I would like to thank Vice Chancellor of Bhoj Open University, Dr. Sonwalkar ji, along with Smita Madam and other team to invite me here for delivering lecture on criteria 3. So let me share my screen. So can you see my screen, please? Yes, ma'am, it's perfect. Okay, okay. So I have been given the responsibility to talk upon the research, innovation and extension, that is criteria 3 of NAC. So what I have thought is simply I will take some examples of each and every subsections of it. But I believe that unless and until we have the background, which is really very well known. So, I mean, we must take a dive into the research domain first, and then if we speak about the criteria 3, it will be better. And therefore, with this understanding, I have decided to deliver the lecture on the following contents. That first of all, how really we can build up the background of research. If anybody is interested to go into the research domain, so what are the essential parameters, what are the essential characteristics, or what are the essential processes through which we have to undergo basically. So I am going to start with this, because whatever contents are there within this background,
those are being utilized in all of the further sections. That is promotion of research and facilities, resource mobilization for research, innovation ecosystem, consultancy, extension activities, and collaboration. So let me start with the background building. So background building for research, innovation, and extension. I'll surely start with the stakeholders which are too much important in any of the educational organization. And especially when we talk about the accreditation process, whether that accreditation is by NAAC or NBA or ABET or any authority, any agency, I should say. So I would like to focus upon first the stakeholders. The very, very important stakeholders in any of the institution for this reason are the students, then faculty, and the organization, especially with respect to the criteria 3, which I am responsible for. So here I would like to suggest, otherwise there are so many other stakeholders also, which are though their importance is too much in other criteria, but focusing upon this criteria, I must say that there are 3 major stakeholders which are affecting, or their performance is affected on the criteria 3. So students, faculty, and organization. So if I say students and faculty, then I must say hence organization. So ultimately organization's performance is affected. So this is what I want to focus upon. Now, whatever I'm going to speak about the research, so please consider that the students and faculty, for both of them, the things are related. So if I am interested to build up the research attitude, so what is badly required? सभी को लगता है, स्पेशली बच्चों को लगता है रिसर्च, या हम भी जब बहुत जूनियर थे, ये क्या है रिसर्च, कितना भयानक है, कितना पढ़ना पड़ता है, कितना क्या क्या करना पड़ता है, ये बहुत ही फालतू है, जरूरी नहीं है। दुनिया भर की चीजें दिमाग में आती थी। आज भी स्टूडेंट्स लोगों में पॉसिबिलिटीज इस चीज की है, टीचर्स में तो होना नहीं चाहिए। बहुत कुछ चेंजेस हो गए हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि टीचर्स लोगों को जो है अब इसेंशियल हो गया है, एंड देयरफॉर एवरीबॉडी मस्ट know what are the factors which are Madam, affecting. sorry to interrupt you. Madam, sorry to interrupt you. Your video is not on. Pardon? We are not. Your video is not on, ma'am. We are not able to see you. Okay. Sorry to interrupt you. Okay. It's fine. ठीक है? Yes, ma'am. Perfectly fine. Okay. So, what kind of background is needed basically to build up the background for research? I must say that first of all, we must have the positive attitude in general, and then only it will be really possible for us to understand the research and research related terminologies and the actual processes within. And then nowadays it has become very much essential, as everybody knows, that research ethics are to be followed. So with this, I have written here how to develop the positive attitude. So developing positive attitude, it needs, it says that trust upon yourself first. Trust upon yourself. What does it mean? Whatever I want to do, in general I am speaking, whatever I wish to do, so I must be very, very confident myself that yes, I can do. So trust upon yourself. So definitely there are so many things for which affect
to say like this, but yes, we have to build up the confidence for this reason. Then only trusting is possible. So how really the positive people affect us? So whenever we have the company of positive minded people, it helps to create the positive environment, and that environment is very much helpful for us to work. This is what my point is. So believe in yourself. Start from I can't to I can do. Be with the company of positive minded people to build up the positive attitude. And then only, it will be possible for us to enter into the research, to understand the, or to take up the research. So, see, I have written some more points here again for positive attitude. हमारे मन को बहुत शांति किन चीजों से मिलती है? पॉजिटिव एटीट्यूड से ही मिलती है. सो और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सो वी कैन वॉलंटियर फॉर सम एक्टिविटीज. हर पल जो है हम जीना सीखे, खूब खुश रह के हर पल जीना सीखे. जो भी हमारे सामने चीजें आ रही है उससे हम सीखना, कुछ ना कुछ सीखे. प्यार देते रहे, प्यार बांटते रहे, प्यार लेते रहे, कमाते रहे. बहुत ही अच्छा खुशनुमा माहौल जब हम देते हैं तब हमें मिलता भी है, और इससे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी भी हमें मिलती है. और ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहकर यदि हम रिसर्च करने की बात करें तो उसका मजा ही कोई अलग है. मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको ये सब शेयर कर रही हूँ. सो यदि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है, मेरे साथ वाले लोगों ने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, मैंने उनके साथ उनको देखा है कैसे काम करते हैं, वो लोग क्या कितना टाइम देते हैं, मैं उनको एडमायर करती हूँ. जब ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है तो हम क्या नहीं कर सकते हैं. इस सोच के साथ यदि हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद की स्टेप है कि रिसर्च एस्पेक्ट्स को समझना, अंडरस्टैंडिंग द रिसर्च एस्पेक्ट्स. आई वुड डेफिनेटली लाइक टू सजेस्ट दैट आप लोग जो है, हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे टॉपिक उठाना शुरू कर देते हैं, और इससे हमारा बेस जो है वो बिल्कुल नहीं बनता है, हमारी थिंकिंग पावर बनती नहीं है, और रिसर्च की जो क्वालिटी है वो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, और ये बहुत बाद में पता चलता है. और इसीलिए इट विल बी बेटर इफ वी स्टार्ट विद द फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज, द रिव्यू ऑफ फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज. मैं साइंस की विद्यार्थी हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी हूँ, और इसलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए हैं कि हम लोग जब बात करते हैं, वी टॉक अबाउट सम टर्म्स लाइक फिलॉसफी, साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इम्पैक्ट एंड रिसर्च. No doubt these terminologies are very well connected to each other, but what is the basic difference between them? हम देखते हैं कि किसी कॉलेज का नाम होता है फलाना फलाना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फलाना फलाना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, or simply engineering and technology. It means that these terms are different. ये terms अलग अलग हैं, पर इनका मतलब क्या है? सारी terms जो है वो knowledge से जुड़ी हुई है, एक ही सेंटर पॉइंट है इन सारे टर्म्स का. बट जब भी हम रिसर्च शुरू करते हैं तो हमारे फंडामेंटल्स क्लियर होना चाहिए. हम जिस भी डोमेन में काम कर रहे हैं उस डोमेन की जो फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज है उसको हमें पहले लिस्ट आउट करना है. लिस्ट आउट करके उनके एक्चुअल मीनिंग क्या है उनको समझना है, और उसके बाद जब हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं बहुत मजा आता है. आजमा के देखें, या हम हमारे स्टूडेंट्स को भी यदि हम लोग गाइड कर रहे हैं तो इस हिसाब से यदि गाइड करेंगे तो वाकई में बहुत मजा आएगा. सो फिलॉसफी,
मैं इन पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दूंगी, बट थोड़ा सा बताऊंगी जरूर। मैंने बताया कि रिव्यूइंग फंडामेंटल टर्मिनोलॉजी related to a domain of research is very much essential to understand. So philosophy, knowing that knowledge exists. Science, discovering the knowledge. Engineering, it is a process of knowledge, processing of knowledge. Technology, bringing the knowledge to the people. So it is a kind of transformation which we talk about. Impact, so towards productivity and economy. Research, contributing to the source of knowledge. So these terminologies are very, very important. And ऐसी हमारे अलग अलग जो रिसर्च डोमेन्स में हम लोग काम करते हैं, कोई सोशल साइंस में काम कर रहा होगा, कोई इकोनॉमिक्स में कर रहा होगा, कोई कॉमर्स में कर रहा होगा, आप भी अपने फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज को इकट्ठी करें और जो सिमिलर टाइप के टर्म्स हैं उनको बताने की कोशिश करें स्टूडेंट्स को भी, so that they can at least know about all these things and pick up the issues related to their problems accordingly. So research क्या होता है सबको पता है, मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, बट जैसे मैंने इसके पहले भी बताया, making the contribution to the source of knowledge and wisdom, इसीलिए इसको research, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उसको, उसमें और हम क्या नई चीजें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने विजडम से. सो बेसिकली ये रिसर्च यानी फंडामेंटल, बिल्कुल छोटी सी जो डेफिनेशन है जनरलाइज, वो ये है. फिर अलग अलग हमने जो नीचे लिखी है यहाँ बताई है, ये सारी एग्जिस्टेंस में है डेफिनेशन. बट टू मेक द कंट्रीब्यूशन टू द सोर्स ऑफ नॉलेज by applying our wisdom, this is the basic definition of the research. So it requires so many parameters like critical thinking for problem solving, brainstorming sessions are needed, creativity, then conceptual study and all those things, and we know all these things. But if you look at the research process, so normally we follow two models. So one of them, I mean, there are two models. One is having the bottom-up approach, another is having the top-down approach. So what is the basic difference between the two? देखिए, बहुत लोग जो है वो हमारी जो स्टडी चल रही है, तो स्टडी के इमीडिएटली बाद, लाइक एमटेक करने के बाद सीधे पीएचडी करने के लिए एंटर होते हैं, है ना, या एमकॉम करने के बाद होते हैं. आजकल तो एग्जाम देनी पड़ती है, इसलिए कीपिंग दैट थिंग अगेन, बहुत ज्यादा उनको जिस एक्सपीरियंस नहीं होता है, परंतु ये सारी एग्जाम्स देके सीधे रिसर्च फील्ड में आते हैं. तो ऐसे लोगों के लिए बॉटम अप अप्रोच जो है वो यूजफुल है. कैसे है, मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताती हूँ कि नॉलेज गेन्ड ड्यूरिंग हायर स्टडीज, इट फॉर्म्स द बेस फॉर देम, क्योंकि वो लोग एक डिग्री, हायर डिग्री लेकर आ रहे हैं, जो भी उन्होंने पढ़ा है उस डोमेन में वो बेस मानकर जो है वो आगे बढ़ रहे हैं. सो दिस इज द बेस लाइन फॉर देम. देन दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगल. होता क्या है, तब उनको पता नहीं रहता है कि मुझे पीएचडी एक्चुअल किस फील्ड में करना है, मेरे सब्जेक्ट के किस फील्ड में करना है, ये नहीं पता रहता है. और इसलिए गाइड्स जो होते हैं नॉर्मली वो बोलते हैं कि चलिए आप पढ़िए, आप पढ़िए, ये किताब पढ़िए, वो किताब पढ़िए, ये पेपर्स पढ़िए, वगैरह वगैरह. और फिर आपको सबसे ज्यादा अच्छा कन्वीनियंट, आपको किसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है, किस एरिया में कॉन्फिडेंस आ रहा है, बट इट अगेन it takes time and ultimately at a point, ये जो लिखा है contribution begins here. So इस पॉइंट से फिर जो है उसका एक्चुअल रिसर्च शुरू होने की, एक्चुअल रिसर्च शुरू होता है. सो द थिंग इज कि ये बॉटम अप अप्रोच शुरुआत से, और फिर रिसर्च जैसे उसको पता चला कि ठीक है मेरा ये एरिया है, अब मैं टिपिकली इसी एरिया के रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करूंगा जो बहुत ज्यादा रिपीटेड जर्नल्स हैं उससे, या मुझे कहीं से भी अच्छा मैटर मिल रहा है, और फिर अपना काम, अपने ऑब्जेक्टिव्स जो सेटअप करते हैं उसके हिसाब से काम होता है. सो एंड ऐसे आगे बढ़ के
और मीन्स जो है वो रिसर्च का काम करते हैं. सो क्यों अटक गया है भाई? यस, नेक्स्ट दूसरा तरीका टॉप डाउन अप्रोच. ये टॉप डाउन अप्रोच इसलिए बोला गया है, ये कई सारे टीचर्स हैं, कई सारे इंडस्ट्री के लोग हैं, जो जिन लोगों को पता होता है कि मेरा एरिया फिक्स्ड है, मेरे को इस सब डोमेन में काम करना है, पता होता है, तो उनके लिए जो बेस है वो बड़ा स्ट्रांग पहले से ही है. अब उनको वहां से शुरुआत करनी है कि अब इस मेरे सब डोमेन में मेरे लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, और उन पॉसिबिलिटीज से शुरुआत करके और रिसर्च करने की चेष्टा करके आगे बढ़ के और काम होता है. बट जैसे अभी मैंने बताया कि कोई एजुकेशन एनवायरनमेंट से आके रिसर्च करता है, कोई इंडस्ट्री एनवायरनमेंट से आके रिसर्च करता है, कोई साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस और रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस में से भी आके काम करता है. अब कहीं से भी किसी भी बैकग्राउंड से यदि कैंडिडेट आता है तो उसको ये सोचना पड़ता है कि जो रिसर्च के टाइप से उसमें से मेरे को कौन से टाइप का रिसर्च मेरे प्रॉब्लम्स के हिसाब से परफेक्ट होगा. सो देयर आर टाइप्स ऑफ रिसर्चेस: डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, इंटरडिसिप्लिनरी, पार्टिसिपेटिव एंड एक्शन. आपने अभी देखा होगा कि नई शिक्षा नीति में डिस्क्रिप्टिव को छोड़कर और बाकी जो 4 टाइप्स के रिसर्च है, स्पेशली इंटरडिसिप्लिनरी, इस पे बहुत जोर दिया गया है. मैं इस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी, बट आपको सिर्फ ये मुझे बताना है कि रिसर्च क्यों जरूरी है, और हमारा ये जो क्राइटेरिया इट इज फोकस्ड ऑन रिसर्च ओनली, और इसलिए मुझे ये सारी चीजें बताना जरूरी लग रही है. सो चलिए, नॉर्मली रिसर्च किया कैसे जाता है, तो मैंने मॉडल्स तो बता दिए, परंतु उस मॉडल्स में अलग अलग डोमेन्स मीन्स अलग अलग टाइप के डोमेन्स जो हैं वो हम आइडेंटिफाई करते हैं. आई एम टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी. तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देना चाह रही हूँ मैं यहाँ कि एप्लीकेशन डोमेन होता है, प्रॉब्लम डोमेन, सिस्टम डोमेन एंड इकोनॉमी डोमेन. सो इफ दे आर द डिफरेंट डोमेन्स, इट मीन्स दैट उनका उनका जो उनका उद्देश्य भी अलग अलग है, उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग है, उनका एम अलग है, उनके ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग है. सो एप्लीकेशन डोमेन टॉक्स फॉर व्हाट फॉर यू आर गोइंग टू डू दिस रिसर्च. प्रॉब्लम डोमेन, why to, system domain, how to, and economy domain, why for. So this is the problem solving approach normally we use basically. क्यों रिसर्च करना चाहिए ये मैं बाद में बताऊंगी, बट रिसर्च स्किल्स इंप्रूव करने की शुरुआत मैंने आपको बताई, पर जो ऑलरेडी रिसर्च में हैं, हाउ रियली दे कैन improve their research skills ahead. So start thinking broadly about an area of interest, then dive into the specifics. Learn to know about the quality source. Try to refer various sources to verify information. Do not accept surprising answers. Be open for discussions. Easily कोई भी चीज यदि हमें मिली है या देखा है हमने, do not take it as it is. सोचिए ये बराबर है कि नहीं, हमारी विजडम से हम लोग काम करें. Stay organized and work systematically. Take advantage of library resources and the other forums. So research skills यदि improve करनी है, so these are some पॉइंट्स. नाउ जो भी हम रिसर्च करते हैं इनका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ता है कम्युनिटी पे, क्योंकि वी ऑलवेज टॉक अबाउट द रिसर्च विच हैज बीन ट्रांसफर और विच इज ट्रांसफॉर्मिंग द कम्युनिटी. भाई रिसर्च का यूज क्या होना चाहिए? अभी आप सबको पता है कि यूजीसी ने मैंडेटरी किया है कि जब भी आपका कोई छात्र है वो उसकी पीएचडी थीसिस सबमिट कर रहा है, तो उसको एक पैराग्राफ लिख के देना है कि आपका ये जो रिसर्च है ये कम्युनिटी के लिए कैसे बेनिफिशियल है.
ये मैंडेटरी हो गया है, ये सबको पता है. So how really the research is impacting or helping the community? So again, if you look at the stakeholders which are affecting, so maybe your research may be beneficial for educational organization, maybe for the community, maybe for the students also. So benefits of research, especially for students and फैकल्टी. यदि स्टूडेंट्स और फैकल्टी की बात करें तो निश्चित ही हम ये देख रहे हैं कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारा नॉलेज एनहांस होता है, क्लैरिफाइज कंफ्यूजन, गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट. हम जब पढ़ाते हैं रिसर्च करने के बाद पूरा एटीट्यूड चेंज होता है. पढ़ाते पढ़ाते ही कई सारे एग्जाम्पल्स हमें सामने बिल्कुल आंखों के सामने दिखते हैं और हम लोग बच्चों को पढ़ाते समय बता सकते हैं. इट इज रियली ओनली ड्यू टू दिस रिसर्च. रीडिंग लीड्स टू लर्न अबाउट द मेथड्स एंड इश्यूज, अंडरस्टैंडिंग द पब्लिश्ड वर्क, team and individual work, to know the interest, to know the roots of the study, understanding the rationale, contributing to society. ये सारी चीजें मैंने पॉइंट्स बनाए हैं. आपको चाहिए हो तो मैं मैडम को दे दूंगी. अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि मुझे फोकस करना है आगे हमारे क्राइटेरिया पे. बट ऑल दीज थिंग्स आर हाईली कोरिलेटेड टू the criteria 3 and therefore simply I am going to brush it. So opportunities यदि स्टूडेंट्स के लिए हम बात करते हैं तो आज हमारे देश में कई सारे टेक्निकल इवेंट्स हो रहे हैं नेशनल लेवल पे. उसके अलावा हमारे यहाँ इंटर कॉलेजिएट फेस्टिवल्स होते हैं, इंटर यूनिवर्सिटी फेस्टिवल्स होते हैं. वो टेक्निकल फेस्टिवल्स ज्यादा होते हैं. मैं बार बार बता रही हूँ, मैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट से आ रही हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा मेरा ओरिएंटेशन आपको टेक्नोलॉजिकल दिखेगा. बट यू ऑल्सो कैन व्यू फ्रॉम योर own domain or your own area basically. So the government provides the funds for the innovation. There are certain agencies and those are listed on the variety the government sites. गवर्नमेंट की एजेंसीज है बहुत सारी जो किस किस प्रकार के फंड्स किन किन चीजों के लिए देती है. सब कुछ आजकल हमें नेट पर मिलता है. प्लीज गो थ्रू इट. टेक्नोलॉजिकल इवेंट्स एट नेशनल लेवल, ऐसे इवेंट्स जिसमें स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें टीचर्स फैकल्टी भी पार्टिसिपेट कर सकती है. सो कॉन्फ्रेंसेस होती है स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की. वी कैन पार्टिसिपेट, वी कैन टेक पार्ट, वी कैन प्रेजेंट अवर research and those conferences, then symposiums at state, national and international levels. Apart from all these things, to encourage the students, government provides the scholarships. बहुत सारी अलग अलग scholarships गवर्नमेंट ने दी हुई है. बहुत अलग अलग टाइप की scholarships दे के रखी है. को पता है कि नेट जो क्लियर करता है उनको जेआरएफ की स्कॉलरशिप मिलती है, एसआरएफ की स्कॉलरशिप्स है, टीचर्स को, स्टूडेंट्स को ट्रैवल ग्रांट है और कई प्रकार की फेलोशिप्स भी आप लोग नेट पर देखेंगे. सो ये सारा रिसर्च ओरिएंटेड एटीट्यूड यदि हमारा जनरेट होता है, वैसे हम यदि काम करते हैं तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी गवर्नमेंट ने बहुत सारी हमारे लिए दे के रखी है. उसके बाद जो है मेंबरशिप ऑफ प्रोफेशनल बॉडीज. सो कई सारे हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, हमारे एरिया से रिलेटेड प्रोफेशनल बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, जो नेशनल लेवल की भी होती है, इंटरनेशनल लेवल की भी होती है. सो इफ वी आर द पार्ट ऑफ दैट बॉडी तो हमें कितने सारे उससे फायदे होते हैं, ये सभी को पता है जो जो लोग मेंबर्स हैं. सो इट स्ट्रेंथन्स प्रोफेशनल नेटवर्किंग, क्योंकि कई सारे मैगजीन से, कई सारे हमारी जर्नल्स हैं, उस मेंबरशिप के कारण हमें काफी फायदा होता है. फ्रीशिप भी मिलती है बहुत बार. तो उससे कौन कौन किस किस एरिया में क्या काम कर रहा है, इनोवेशंस कहाँ कहाँ हुए हैं, तो ये सारी चीजें हमारे पास ऑटोमेटिकली आती है. हमारा नेटवर्क, प्रोफेशनल नेटवर्क बढ़ता है इससे. गेट अपॉर्चुनिटीज टू लिसन हाई प्रोफेशनल्स एंड रिसर्चर्स टॉक.
मैंने अभी बताया आपको। पार्टिसिपेट इन इवेंट्स एट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल एक्टिविटीज। इजी एक्सेस ऑफ रिसर्च लिटरेचर, बिल्कुल सही है। जहां बहुत ज्यादा पैसा देकर हमें पेपर्स मिलते भी नहीं है, पैसा देकर भी पेपर्स हमें नहीं मिलते हैं अच्छे क्वालिटी के, यदि हमारी इच्छा हो कि हम खरीदें फिर भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे जो क्वालिटेटिव जो लिटरेचर है उसके लिए मेंबरशिप बहुत काम आती है। और आजकल तो इंस्टीट्यूट भी मेंबरशिप का पैसा देता है। हर इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी उसकी अपनी पॉलिसी बनी है और उस पॉलिसी की तहत बनी होना चाहिए, नहीं बनी है तो होना चाहिए। उसके तहत जो है वो मेंबरशिप का किस पर्टिकुलर बॉडी के यदि आप मेंबर बनते हो तो आपको कितना % यूनिवर्सिटी देगी और कितना % आपको देना पड़ेगा, ये पॉलिसी में लिखा होता है या कॉलेज या यूनिवर्सिटी देती है। So it is a kind of motivation for the researchers. Then concession and free registration. कई सारी इंटरनेशनल लेवल की भी जो कॉन्फ्रेंसेस होती है, यदि आप उनके प्रोफेशनल बॉडीज के मेंबर्स हो तो आपको इसमें भी या तो फ्रीशिप मिलेगी या आपको कंसेशन इन रजिस्ट्रेशन मिलेगा। हायर वेटेज एंड क्रेडेंशियल्स इन LOR इन वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन में भी जब आप लिखते हैं कि आई एम द मेंबर, कोई भी यदि आपके बारे में लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देता है और उसमें आपके बारे में पता है कि आप इन बॉडीज के मेंबर्स हो, सो इट अफेक्ट्स अ लॉट। बहुत सारी अलग अलग इंडिया ने इनोवेशन के लिए इनिशिएटिव्स लिए हैं। ये सारे जो हैं ये हमारे वेबसाइट्स पर अवेलेबल है। टॉयकेथॉन नाम सुना होगा, इंडिया इनोवेशन इनिशिएटिव में सबसे पहला है टॉयकेथॉन, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें AICTE, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इन सब के सपोर्ट से एक सेल बनाए और इस सेल के अंतर्गत ये एक्टिविटीज सारे यंग स्टूडेंट्स के लिए पूरा ये एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल ने। सो इसमें स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन होता है, इसमें सिंगापुर इंडिया हैकेथॉन होता है, इसमें समाधान ड्रग डिस्कवरी हैकेथॉन। आप प्लीज देखिए, बहुत सारे इनिशिएटिव्स आपको मिलेंगे एंड these are the opportunities for our students with our own guidance। यहाँ जितने भी टीचर्स हैं उनको मैं एक और बताना चाहूंगी कि आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटी मिलती है इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस हैकेथॉन्स, दिस इनिशिएटिव्स। आती है, मेल्स आती है, आप देखिए ऊपर इनकी वेबसाइट्स देखिए, डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस? यस। किस तरीके से आप पार्ट बनना चाहोगे? क्या आप जजमेंट करना चाहोगे या आप और किसी दूसरे रोल में रहना चाहोगे? बहुत सारे रोल्स हैं उसमें, तो आप किन रोल्स में काम करना चाहोगे, कैसे हेल्प करना चाहोगे इनिशिएटिव्स में, आप देखिए। So you will also enjoy, you will get to know so many things related to these kind of initiatives. So ये तो हुआ रिसर्च एस्पेक्ट के बारे में। मैंने बताया था कि सबसे पहले हम लोगों को पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करना है, तभी जाके रिसर्च के जो एस्पेक्ट्स हैं वो समझने में हमें आसानी होगी। एंड द लास्ट वन फॉर बिल्डिंग अप द रिसर्च एनवायरनमेंट, द लास्ट वन इज द रिसर्च एथिक्स। सबको पता है आज यदि UGC के एंट्रेंस के बाद में कोई बच्चा एंट्रेंस निकालता है, थ्रू होता है, तो उसको कोर्स वर्क करना पड़ता है। और कोर्स वर्क में ये नया आया है पिछले साल से, पिछले 2 साल से ये नया एक पेपर जो है वो इंसर्ट हुआ है। क्यों हुआ है? बहुत जरूरत, ज्यादा जरूरत महसूस हुई है UGC को, और इसीलिए ये रिसर्च एथिक्स की बात करनी पड़ रही है। सो व्हाट इज देयर इन रिसर्च एथिक्स? यदि आप सिलेबस देखेंगे तो आपको पता चलेगा फिलॉसफी एंड एथिक्स। ये जो टर्म्स है ये बड़ी जनरल टर्म्स है,
परंतु यदि रिसर्च इन एकेडमिक्स की बात करते हैं तो इंट्रोडक्टरी लेवल से इसमें सब कुछ आपको मिलेगा इसके कंटेंट्स में। बहुत ही खूबसूरत इसका ये बनाया हुआ है, सिलेबस बनाया हुआ है। साइंटिफिक कंडक्ट, पब्लिकेशन एथिक्स, ओपन एक्सेस पब्लिशिंग, पब्लिकेशन मिसकंडक्ट, डेटाबेसेस एंड रिसर्च मैट्रिक्स, ये सारे इनके जो कंटेंट्स है बहुत शानदार है। और वाकई में सारी चीजें आज की तारीख में सभी लोगों को समझना बहुत जरूरी हो गई है, तभी जाके एक क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो प्रोड्यूस हो सकता है। और ये क्वालिटेटिव रिसर्च ही ये जो NAAC का क्राइटेरिया 3 है इससे इसका रिलेशन है। क्वालिटी रिसर्च का ही बहुत ज्यादा मतलब होता है। वो इसलिए होता है बहुत ज्यादा मतलब क्योंकि वेटेज तो आपको मार्क्स तभी मिलेंगे जब आपका क्वालिटी रिसर्च होगा, आपके इंस्टीट्यूशन में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट होगा रिसर्च का। ऑल स्टूडेंट्स means students and faculty are greatly motivated towards this research and innovation. एक अच्छे एनवायरनमेंट में काम करने का जब ऑर्गेनाइजेशन में मौका मिलता है तो अच्छा रिसर्च भी प्रोड्यूस होता है, और उसका जो है उसका वेटेज क्राइटेरिया 3 में कैसे मिलता है वो अब हम देखने वाले हैं। तो यदि किसी को लग रहा हो कि मैडम ये क्यों आपने पहले बताया, इसका क्या लेना देना है, द बेस इज द बेसिक रिसर्च एंड द होल प्रोसेस रिलेटेड टू इट। तो यदि वो आप नहीं समझेंगे तो मेरे ख्याल से सीधे सीधे क्राइटेरिया 3 शुरू करना उचित नहीं होगा। इस सोच के साथ में मैंने मेरा लेक्चर शुरू करा। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड फैसिलिटीज, ये सबसे पहला हमारा सब क्राइटेरिया है। प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड फैसिलिटीज, ये जो फैसिलिटीज है ये फैसिलिटीज इज रिलेटेड टू द रिसर्च एनवायरनमेंट। प्रमोशन ऑफ रिसर्च यानी ये आपका इंस्टीट्यूट जो है, आपकी फैकल्टी जो है वो कितना अच्छा एनवायरनमेंट ओवरऑल बना रही है रिसर्च के लिए, और मैं उल्टा बोल सकती हूँ कि कितना अच्छा प्लेटफॉर्म जनरेट किया गया है और उसके तहत कितने अच्छे काम हमारे स्टेक होल्डर्स कर रहे हैं, and ultimately it will reflect the performance of organization. Students और faculty ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं, making use of the facilities in the organization. हम एक अब देखते हैं कि उस 3 criteria 3 में 3.1.1 the institution has a well defined policy for promotion of research and the same is uploaded on the institutional वेबसाइट। मुझे पता है कि आपके और लेक्चर्स हो चुके हैं और सभी ने बताया होगा कि किसी भी एक्रेडिटेशन में सिर्फ चीजों को लिखना पर्याप्त नहीं होता है। हमने कंटेंट्स लिख दिए, इट इज नॉट इनफ, हमको उसके प्रूफ्स देने पड़ते हैं। और ये सारा जो है मैंने हमारे फॉर्मेट NAAC के फॉर्मेट से ही उठाया है, एक एक चीज आपको यहाँ आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कि हमारे यहाँ जो भी कुछ हम काम कर रहे हैं सिर्फ हम उसको लिखे नहीं, उसके प्रूफ्स भी दें। और इसलिए आपका ये 3.1.1 यदि कहता है कि डू यू हैव अ वेल डिफाइंड पॉलिसी फॉर प्रमोशन ऑफ रिसर्च इन योर इंस्टीट्यूट and has it been uploaded on your website, yes or no? If yes, provide the link, provide your URL. आप जो है पॉलिसी का स्टेटमेंट जो है, आपके कंटेंट जो है वो फाइल है वो भी आप अपलोड करिए और URL भी दीजिए, आपकी वेबसाइट का URL भी दीजिए। This is what is needed here, but within this you have to provide the minutes of governing council or syndicate or board of management related to research promotion policy adoption. ऐसा नहीं होता है कि
बहुत गलत फहमी है कि नैक आने वाली है इसलिए जल्दी जल्दी हम कहीं से वो पॉलिसी लेके और सीधे बता दें ये हमारी पॉलिसी है. नो, दिस इज नॉट वैलिड एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेड एट ऑल. सो ये पॉलिसी बनी कैसे? आप लोगों ने कितनी मीटिंग्स की हैं? किस लेवल की मीटिंग्स हुई हैं? अल्टीमेटली ये पास किसने किया है? इन ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपको बताने पड़ते हैं. एंड दिस इज व्हाट इज देयर. Additionally, if you are interested to provide any information, so you can write, because everywhere you will find that any additional information ye rehta hai. Okay, so this is what is about 3.1.1. I am sure that I am audible to all of you. Am I audible, please? Yes, ma'am, you are audible. Okay, thank you. Thank you. And my voice is clear, right? Voice is clear, ma'am. Everything is so smooth, and we are enjoying your session. Thank you so much. Okay, okay, thank you. So 3.1.2. So what does it say? Let us look at it. See, it talks about the institution provides seed money to its researchers for research, and average per year. It has to be this has to be given in average per year. Like, this is for again the promotion of research. How many teachers have been given the seed money? Seed money is the facility to provide the funds to the teachers by the organization or by institution or by university for research purpose. So under this, the amount of seed money provided by institution to its faculty year wise during last 5 years. सबको पता है पिछले 5 साल का डेटा आप लोगों को SSR में भरना पड़ता है, AQAR में भरना पड़ता है. AQAR में तो उसी साल का होगा, बट आप जो है कॉन्जिक्यूटिवली फिर AQAR से हम लोग 5 साल का डेटा भरने में हमारे लिए आसानी होती है. सो द अमाउंट ऑफ सीड मनी आपने ग्रेजुअली यदि 5 साल का आपने दिखाया है डेटा, तो 5 साल में किस ईयर में कितना पैसा एवरेज पर ईयर पर टीचर आपने दिया है, सीड मनी अमाउंट, ये आपको लिखना पड़ता है इन लैक्स. मिनट्स ऑफ द रिलेवेंट बॉडीज ऑफ द यूनिवर्सिटी. जो भी सीड मनी प्रोवाइड कर रहा है, क्या उसके लिए कोई कमेटी बनाई गई है? उस कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उन लोगों ने कब कब मीटिंग की है, कितनी एप्लीकेशंस आई थी, कितने लोगों को दिया गया, किन किन रिसर्चर्स को कितना कितना फंड दिया गया. See, all the details are to be there in those meetings. List of the teachers receiving grant and details of the grant received. Budget and expenditure statement signed by finance officer indicating seed money is provided and utilized. यदि हमने मांगा है 2 साल के लिए सीड मनी, तो निश्चित ही वो 5 साल के अंदर जो है वो होगा, यूटिलाइज होगा, और आपका वो यूटिलाइजेशन भी साइमल्टेनियसली यहाँ दिखना चाहिए. And if at all any additional information is to be written, you can. So 3.1.3, number of teachers awarded international fellowship for advanced studies or research during last 5 years. So ये रिस्पॉन्स जो है, रिस्पॉन्स के लिए सबको पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्स इज ऑन द बेसिस ऑफ द पॉइंट्स व्हिच हैव बीन रिटन और द डेटा व्हिच हैज बीन गिवन डाउन साइड बिलो. सो बेसिकली, एंड देयर इज अ स्कीम टू allocate the response. So once you go through that format, you will get to know about it. So here, number of teachers awarded international fellowship for advanced studies or research during 5 years. So you have to provide the data in terms of number of teachers awarded that fellowship, how many number of teachers they have been given this kind of, they have been awarded with this particular fellowship, the list of teachers, and the details of the international organizations from where they are getting the fellowship. It is not enough.
without providing the letters, award letters of those teachers. So you have to allocate, you have to attach the e-copies of award letters. 3.1.4, number of JRFs, SRFs, postdoctoral fellows, research associates, other research fellows in the university or institution enrolled during the last 5 years. Yes, मैं आपको फिर से थोड़ा पीछे लेके जाना चाहूंगी. As I told you about the stakeholders, students, faculty and organization. मैं research scholars को भी students में consider कर रही हूँ. In case यदि हम लोग एक और category stakeholders की देना चाहते हैं तो हम अलग से दे सकते हैं, बट मैंने जो शुरू में लिखा था स्टेक होल्डर्स, उसमें स्टूडेंट्स कैटेगरी में ही रिसर्च स्कॉलर्स, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर रिसर्च स्टूडेंट्स, तो मैंने कंसीडर किया था. दिस इज व्हाट इज क्लियर फ्रॉम माय साइड. सो नंबर ऑफ JRFs, SRFs, पोस्ट डॉक्टरल फेलोज, research associates and other research fellows in the university enrolled during last 5 years. हमको नंबर बताना है पहले इन सबका अलग अलग, and then list of all those fellows along with their details. उनको कब मिली, कितने साल के लिए मिली, किस टाइप की मिली, कितनी पर ईयर मिलने वाली है, and all the details. But again, you have to provide the letters from where those students are getting the fellowship, and if any additional information is to be provided, you can. 3.1.5, institution or university must have the facilities. ये मान के चलती है UGC या NAC बेसिकली कि ये फैसिलिटीज तो होना ही चाहिए, बट ये 5 जो फैसिलिटीज हैं उसमें से कोई भी 4 फैसिलिटीज यदि एग्जिस्ट करती हो तो उनके बारे में डिटेल्स दीजिए. This is what is there in 3.1.5. So first is Central Instrumentation Center, Animal House or Greenhouse or Museum, Central Fabrication Facility, or Media Laboratory or Business Lab or Studios. And the last one is Research or Statistical Databases. So यदि इनमें से आपके पास कुछ 4 फैसिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं तो उनके बारे में डिटेल्स दीजिए. डिटेल्स यानी क्या? लिस्ट ऑफ फैसिलिटीज provided by the university or institution and their year of establishment. Again, all of the details means the documents associated with them are to be allocated. So here one thing is written, link to videos and photographs geotagged. अब तो ज्यादा ही जरा अभी कंपलसरी हो गया है जियो टैगिंग. अभी 2 साल पहले तक बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं था, पर जियो टैगिंग हैज बिकम कंपलसरी नाउअडेज. सो ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों को लिंक के थ्रू प्रोवाइड करनी है इंफॉर्मेशन. देन 3.1.6 परसेंटेज ऑफ डिपार्टमेंट्स विद UGC SAP, CAS, DST Feed or DBT, ICSSR or other similar recognition by government agencies. If you have, so give their details. डिटेल्स दीजिए उनके कितने डिपार्टमेंट्स हैं ऐसे जिनको इन एजेंसीज से रिकॉग्निशन मिला है, उनके डिटेल्स दीजिए, उनके अवार्ड के डिटेल्स दीजिए, उनके रिकॉग्निशन के लेटर्स दीजिए. If they are with respect to the departmental, so attach the e-version of departmental recognition award letters, and if again some additional information you want to provide, you can provide in it. Then the next part is resource mobilization for research. So this is 3.2.1. Here we talk about the grants which have been received through the research projects. But here, this sponsorship may be from non-government sources. Earlier, it was seen that it was through the government sources. Now this 3.2.1 grants for research projects sponsored by
non-government sources. Now, what are those non-government sources? It has been listed here. They may be the sources such as industry, corporate houses, international bodies, endowments, chairs in the institutions during last 5 years. So if they are there, any one of them is there. So let us take the opportunity to write the details here. So what are the variety of projects? List them. How much grant you have received? Write that along with the details. When did you get it? How much did you get it? What is the purpose? And all of the details, whatever is required basically. So e-copies of grant award letters for research projects sponsored by non-government is to be attached. So the links are provided and you have to give the information, basic information here. So next, 3.2.2, grants for research projects sponsored by government sources during last 5 years. So जो भी हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट्स अलग अलग गवर्नमेंट के और दूसरे भी जो जिस अलग अलग कैटेगरीज हमें पता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हम गवर्नमेंट सोर्सेस के मान सकते हैं, कौन कौन से नॉन गवर्नमेंट के मान सकते हैं. सो try to divide it as per the norms and give the information about those research projects. So number of research projects as per teacher funded by government and non-government agencies. Last 5 साल का आपको अब पर टीचर ये डेटा प्रोवाइड करना है. So number of full-time teachers worked in institution during last 5 years, especially जो स्टेट गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन से, इंस्टीट्यूशन से, यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत ज्यादा इस क्राइटेरिया के कारण उन लोगों को दिक्कतें आ रही हैं. सो एनीवे, बट दिस इज द सबसेक्शन एंड वी हैव टू फुलफिल इन एनी केस. और हमें डेटा जो है पिछले 5 साल का देना जरूरी है. बट आई एम श्योर दैट आपको पता होगा कि NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन में लिखा हुआ आता है, उनके जो गाइडलाइंस है उसमें लिखा हुआ आता है कि यदि कोई भी टीचर जुलाई में रिक्रूट हुआ है, भले ही वो कॉन्ट्रैक्ट पे हुआ हो या एडहॉक पे हुआ हो, उसने पूरे 2 सेमिस्टर्स यानी 1 साल के लिए यदि काम किया है तो उसको कंसीडर करना है. पर अभी पूरी तरीके से NAAC में ये रूल कहीं दिखता नहीं है, पर NBA में जरूर ये रूल जो है दिखाई देता है. सो कम से कम कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सांस तो लेने में आसानी हो जाती है as far as this criteria is concerned. So we have to attach the supporting documents from the funding agencies who are providing the research projects to the teachers, and we have to provide the link as well. So 3.2.2. Grant for research projects sponsored by government sources during last 5. यही है फिर से, पर इसमें थोड़ा सा नीचे. ओके, e-copies of grant awards letters for research projects sponsored by government. ये हो गया है मेरे ख्याल से, yes हो गया है. So next is innovation ecosystem. Excuse me, I will take a glass of water and we'll continue. 2 minutes. Yes. Innovation ecosystem. This is the another important part of criteria 3. So 3.3.1 says institution has created an ecosystem for innovations, including incubation center and other initiatives for creation and transfer of knowledge. देखिए, ये यदि क्राइटेरिया दिया है तो ये मान के चल रहे हैं आपके यहाँ है, इसका मतलब होना ही चाहिए. मान के चल रहे हैं, यानी यदि हम NAAC में जाने वाले हैं एक्रेडिटेशन के लिए तो आपको ये व्यवस्था
करनी चाहिए और इसमें कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शंस हमको रखने चाहिए। मैंने कुछ यहाँ टिपिकल एग्जाम्पल्स यहाँ दिखाए हैं जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में या अलग अलग यूनिवर्सिटीज में आपको दिखाई देंगे। सो इकोसिस्टम फॉर रिसर्च, ठीक है, इकोसिस्टम्स काहे के लिए? तो पहले इकोसिस्टम फॉर रिसर्च क्या आप लोगों ने डेवलप किया है? तो सबसे पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ कि देर इज द वेल स्ट्रक्चर्ड रिसर्च एंड कंसल्टेंसी पॉलिसी focusing upon promoting institutional sponsored impactful policy research. All the departments and faculty members adhere this policy. So हमारी एक सिस्टम बनी है रिसर्च के लिए जिसमें कई सारे मीन्स ये जो हम बोलते हैं पॉलिसी बोलते हैं, तो पॉलिसी के अंदर गाइडलाइंस भी है, उसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस है। आप देखेंगे यदि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की वेबसाइट देखेंगे तो यू विल लुक एट द वेबसाइट दैट देयर आर एग्जिस्टिंग सो मेनी पॉलिसीज। और वो जो पॉलिसीज है उसमें यदि आप क्लिक करेंगे पॉलिसी वाले आइकॉन पे तो अलग अलग पॉलिसीज आपको दिखेंगी। कंसल्टेंसी के लिए पॉलिसी दिखेगी, आईपीआर के लिए पॉलिसी दिखेगी, आपको स्ट्रेटेजिक प्लान्स के लिए अलग से पॉलिसीज दिखेगी, आपको रिसर्च मोबिलाइजेशन के लिए या रिसर्च यूटिलाइजेशन के लिए, उसके ऑप्टिमम यूज के लिए भी पॉलिसीज दिखेंगी। सो पॉलिसीज जो है वो बनने के बाद वो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती है, तो वो टीचर्स और स्टूडेंट्स को उसको पढ़कर समझकर और इम्प्लीमेंट करना होता है बेसिकली। सो it is always a very good practice. आप प्लीज देखिएगा। So as a result, some departments received support under UGC SAP scheme, some departments identified under CPEP, few departments under, ये सब गवर्नमेंट एजेंसीज ने ये दिया हुआ है। बहुत अच्छी पॉलिसी बनाने से, उसको एडहियर करने से क्या फायदा होता है उसका एक हमने उसको वाकई में सिंसियरली उसको एडहियर करने से हमारा जो है बहुत फायदा होता है। हम लोग गवर्नमेंट एजेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, वी कैन डिफेंड देयर एंड टेक अप और रिसीव दोज प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दोज गवर्नमेंट एजेंसीज। सो स्टेट प्लानिंग कमीशन chair on microeconomics governance, सिंधु शोधपीठ चेयर इन बाह्य स्टडीज, ये सारे जो आप देख रहे हैं ये गवर्नमेंट एजेंसी से मिले हुए हमारे पास स्कीम्स है। सो डेफिनेटली इससे एक इकोसिस्टम जो है डेवलप होता है या हुआ है और उसमें रिसर्च जो है बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है। रिसर्च कंपोनेंट इन द form of minor, major project or assignments, etc., has been introduced in the curricula of most of the programs. Being the university, it is possible for us to introduce these minor projects, major projects, or even some assignments which are the research oriented assignments, जो हम अपने करिकुलम में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसका भी फायदा हमें इस इकोसिस्टम से मिलता है और बच्चे भी, इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अपनी अच्छी इनोवेटिव आइडियाज के साथ इंक्यूबेशन सेंटर में काम करने लग गए हैं। आजकल तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस में भी बहुत अच्छा काम करने लग गए हैं बच्चे। एक और आपको मैं बताना चाहूंगी, IEEE एपिक्स, ये आप जरूर, यदि कोई आप लोग इस इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी या साइंस के से हैं आप लोग, तो IEEE एपिक्स नाम मिस को ढूंढे आप, तो उसमें आपको दिखेगा कि देयर आर 4 लेवल्स ऑफ द प्रोसेस। एंड पहले लेवल पर जो है वो शुरुआत करेंगे कि आप आसपास के गांव में जाइए। मैं बच्चों के ये बच्चों की एक्टिविटी की बात कर रही हूँ। तो आजकल कई सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको ऑटोनॉमी मिली है, तो वो लोग काम कर रहे हैं और इससे एक इनोवेशन इकोसिस्टम बनना बड़ा आसान हो रहा है। So that gives rise to the impactful innovation ecosystems. ये मेरा कहना है। IEEE एपिक्स जरूर देखिए।
तो उसमें 4 लेवल, यदि इंजीनियरिंग की पढ़ाई 4 साल की होती है तो ये दिमाग में रख के कि पहले लेवल पे जहां भी बच्चा पढ़ रहा है तो आसपास के गांव में जाए और गांव में जाकर उनकी जरूरतों को समझे और उन जरूरतों के लिए हम क्या कर सकते हैं इसको सोचें। फिर सेकंड लेवल पे उसी से रिलेटेड मिस ये जो हमने आइडेंटिफाई किया है तो उसमें हम क्या क्या रिक्वायरमेंट एनालिसिस, यानी उसको एनालिसिस की बात करेंगे। ऐसे 4 लेवल्स पे हम जो है सबसे आखिरी लेवल पे हम लोग इट बिकम्स पॉसिबल फॉर अस टू थ्रू विद दैट प्रोजेक्ट। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप में से यदि कोई देखना चाहे तो जरूर देख सकता है। सो द इंस्टीट्यूशन एक्नॉलेजेस outstanding research contributions made by the faculty members, research scholars and students by providing incentives in the form of fellowships, certificate of appreciation, souvenir, awards, prizes, seed money grant, etc. मैं आपको एक छोटा सा किस्सा या छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि 2 साल यानी कोविड के पहले की बात है। हमारे यूनिवर्सिटी में छोटी छोटी चीजें हम लोगों को डेवलप करनी थी, तो निश्चित ही हम लोगों ने कुछ हमारे जो बच्चे इंटरेस्टेड थे उन लोगों का एक ग्रुप बनाया और जो छोटे छोटे टास्क बस बट बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो हमने आइडेंटिफाई किए और उन बच्चों को दिए, काम करने के लिए दी। बिलीव मी, इफ दे आर इंटरेस्टेड, उनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यदि उनका इंटरेस्ट है स्टूडेंट्स का और टीचर भी उतना इंटरेस्ट लेता है तो स्टूडेंट्स के लिए यानी उनकी जो एनर्जी है वो कमाल की होती है। वी कैन यूटिलाइज देयर एनर्जी। ऐसे हमने कई सारे काम किए हैं, बहुत सारी सब सिस्टम्स छोटी छोटी बनाई जो आज भी हमारे वेबसाइट पर चल रही है। हमारे फैकल्टी, हमारा स्टाफ, हमारे अधिकारी सब लोग उसको यूज कर रहे हैं। And the one beautiful part, let me tell you, since I am looking at the Deen Dayal Upadhyay Kaushal Kendra, I am director of that. So what I did is I started one course. मैंने एक छोटा सा कोर्स शुरू करा, शॉर्ट टर्म कोर्स, and that was of 1 month duration. 1 महीने के ड्यूरेशन का वो कोर्स था और वो था वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट। क्यों रुके हम, किसके लिए? हम लोगों ने बुलाया एक कंपनी के, एक छोटी कंपनी जिसका बहुत बड़ा नाम हो उसको नहीं बुलाना, छोटी कंपनी हु इज फोकसिंग, दैट कंपनी वाज फोकसिंग अपॉन वेबसाइट डिजाइन ओनली। हमने क्या करा, उनके कुछ लोगों को बुलाया, उनको बोला कि आप इनको जो आप अभी रिसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके हिसाब से इनको ट्रेनिंग दीजिए। और सही बता रही हूँ, सिर्फ 25 दिन का ट्रेनिंग, 5 days a week, 5 weeks, ऐसे 25 दिन के ट्रेनिंग में बच्चों ने जो सीखा उसके बेसिस पर हमने अपने ही यूनिवर्सिटी की कई सारे डिपार्टमेंट जो नए नए खुले थे तो उनकी वेबसाइट नहीं बनी थी, वो हमने इन बच्चों को टास्क दिया। जिन डिपार्टमेंट्स की वेबसाइट को अपग्रेड करना था वो उन बच्चों को टास्क दिया। एंड बिलीव मी, उन बच्चों ने इतना अच्छा काम किया कि आज हमारे वेबसाइट पर जो भी कुछ है ऐसे 8-10 डिपार्टमेंट्स जिनकी वेबसाइट इन्हीं हमारे स्टूडेंट्स ने बनाई है। परंतु यहाँ जो लिखा है कि उनको मोटिवेशन इंसेंटिव्स के फॉर्म में मिलना चाहिए, वो भी हमने किया। हमने एक कंपटीशन रखी और सब बच्चों के कंपटीशन रखने के बाद हमने 10,000 का इनाम प्राइजेस रखे कि जिसकी सबसे अच्छी वेबसाइट होगी। हमने प्रोफेशनल्स को बुलाया बाहर से और उन लोगों से जजमेंट कराया। सो जो पहला ग्रुप था उसको 5,000, दूसरे ग्रुप को 3,000 और तीसरे ग्रुप को जो है वो 2,000, ऐसे 10,000 के हमने प्राइजेस दिए। और जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया उन सबको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन एंड पार्टिसिपेशन दिया। सो इट इज अ काइंड ऑफ इंसेंटिव। छोटी सी बात है परंतु ये बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। सो इसलिए ऐसी कुछ ना कुछ हमारी इकोसिस्टम्स रिसर्च के प्रमोशन के लिए बननी चाहिए। सो इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन, ये जो मैंने अभी बताया कि नई चीजें अभी बहुत ज्यादा मैं बता रही हूं कि बच्चे जो भी आ रहे हैं उनमें एनर्जी बहुत है और उनके एनर्जी का यूटिलाइजेशन करना ये सारे टीचर्स का काम है।
और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हमें उसकी स्ट्रेटेजी बनाना है। सो कई सारे हम लोग वर्कशॉप्स करवा सकते हैं, सेमिनार्स कर सकते हैं, कुछ हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ एक्टिविटीज, कुछ सेल्स बना सकते हैं, उसके अंदर हम लोग कुछ एक्टिविटीज करवा सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हम कैसे इकोसिस्टम बना सकते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। सो हम लोगों ने ये सारा काम किया हुआ है, ये मैंने कुछ लिखा है और कुछ आप देख रहे हैं। सी वी हैव फॉर्म्ड द इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन आल्सो, जहां बच्चों का इनोवेटिव थिंकिंग हमें सामने आता है या इम्प्रूव हम कर सकते हैं। स्पेशली हम लोग नौकरी करने के लिए नहीं तो नौकरी देने के लिए भी बच्चों का एटीट्यूड हमें प्रोवाइड करना है, वो हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। तो वो भी इनकलकेट होने के लिए हम लोगों ने एक सेल बनाया है मैनेजमेंट में, अंकुर नाम का, वो इसी फोकस पर काम करता है, इसी ऑब्जेक्टिव को लेकर काम करता है। सो लाइक दिस यू कैन हैव द वेराइटी ऑफ सेल्स जिसमें अलग अलग टाइप के काम हो, फैकल्टी और स्टूडेंट सब लोग मिलके बहुत ही अच्छे कोहेसिव एनवायरनमेंट में काम करें और अपना काम जो हो वो ट्रांसफॉर्मेशनल हो, इस चीज को हम ध्यान रखें। सो तीसरा जो है वो ट्रांसफर ऑफ नॉलेज। ट्रांसफर ऑफ नॉलेज के लिए हम क्या क्या करते हैं, सो ये भी लिखा हुआ है यहाँ। हम लोग the transfer of knowledge to society and industry is done by the means of policy documents, industry interactions, collaborative research and development of case studies. सो अलग अलग हमारे जो डिपार्टमेंट्स है उन लोगों ने क्या क्या इस चीज के लिए फॉर्म किया है। किसी ने एमओयू फॉर्म किया है, किसी ने इंडस्ट्री इंटर्नशिप सेल्फ मीन्स एक्सेल है, उसमें कई सारी इंडस्ट्रीज को जोड़ा है, वहां से उन बच्चों को छोटे छोटे जॉब्स मिले हैं। सो कई सारे जो काम है हम इस अम्ब्रेला के अंदर कर सकते हैं। So 3.3.2 talks about the number of workshops or seminars conducted on IPR, intellectual property rights and industry academia innovation practices during last 5 years. So हम लोगों ने IPR के लिए कितने सेमिनार्स या वर्कशॉप किए, हमने इंडस्ट्री एकेडेमिया प्रैक्टिसेस कैसे इंप्रूव होगी या कैसे हम लोग उसको चला सकेंगे अच्छे से, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, हम काम कैसे कर सकेंगे, क्या क्या रोल्स होंगे उनके। तो इन सारी चीजों के लिए हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं, सेमिनार करते हैं, करते रहना चाहिए। सो इट इज ऑलवेज बेटर टू बिल्ड अप द कैलेंडर यदि शुरू से बनाए एंड वी एडहियर द कैलेंडर, तो अभी तो हम लोग ब्लेंडेड मोड में भी सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन जो है अभी भी हम लोगों को ऑनलाइन मोड में काम करने के लिए कह रही है, जो मैं अभी आपके सामने कर रही हूँ। सो इट इज अलाउइंग। तो हम लोगों के लिए टाइम ऐसा है कि हम इसका जो है बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। सो नंबर ऑफ वर्कशॉप्स may be conducted, number of seminars may be organized for these reasons, to understand the meaning of intellectual property rights or the practices of industry academia. So you have to see, if you conduct any kind of these kind of activities, so you have to upload the report of each and every event which has been conducted or organized by the institution during last 5 years. 3.3.3 number of awards for innovation won by institution, teachers, research scholars or students during last 5 years. So how many number of awards for the innovation have been won by these stakeholders? So you have to provide the list of innovation and award details. ये जो है अभी मैंने आपको हैकेथॉन, ये सारे टॉयकेथॉन, ये इंजीनियरिंग वाले जो एक्टिविटीज हैं, कॉम्पिटिशन्स है, ये भी इसमें आती है। तो हमारे इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट जो भी पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके भी हमें या अवार्ड लेटर्स या पार्टिसिपेशन लेटर्स वगैरह यहाँ हम लोग लगाते हैं नॉर्मली। So see all these kind of activities.
may be involved in this. 3.3.4, the number of startups incubated on campus during last 5 years. Startups का जमाना है और इसीलिए स्टार्टअप जो है वो नॉर्मली इंक्यूबेशन सेंटर में ही वहीं से निकलते हैं, शुरुआत होती है. मे बी एज द एनबीए के चेयरमैन के रूप में पिछले 5-6 साल से ऑल ओवर इंडिया जा रही हूँ, पर एनबीए इज I mean it is highly related to the technological institutions. तो इसलिए मैं देखती हूँ कि आज हर जो अच्छा कॉलेज है, टीयर 1 कॉलेज जो है, जो ऑटोनॉमस है या यूनिवर्सिटी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट है, हर किसी के यहाँ आज जो है स्टार्टअप्स दिखाई देते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर दिखाई देता है, जो बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूशंस लाइक नेशनल रैपिड के जो इंस्टीट्यूशंस है, वहां तो उनके एल्यूमिनाइज ने इंक्यूबेशन सेंटर्स बना के दिए हैं इंस्टीट्यूशंस को. सो रियली बहुत अच्छा फील आता है जब इस टाइप के काम की शुरुआत इंस्टीट्यूशंस में होती है, और स्पेशली स्टूडेंट्स लोग और टीचर्स लोग मिलके एक उम्दा रिसर्च का काम करने की पहल हाथ में लेते हैं. So here list of startups and their detail like name of startup, nature, year of commencement, etc. फिर later order means sanction order of university for the startups on campus, contact details of the promoters, यदि कोई promoter है, जो कोई अपना startup के लिए कोई promoter है, maybe any agency, maybe any industry, maybe any organization, तो उसका हमको detail देना पड़ता है. Then research publications and awards. So 3.4.1, the institution has a stated code of ethics to check malpractices and plagiarism in research. ये जो है इसका तो सबसे ज्यादा अच्छा, यदि हमें यदि पूरे कंटेंट्स मिलते हैं इसके, तो रिसर्च एथिक्स जो पढ़ाया जाता है कोर्स वर्क के ड्यूरेशन में, तो उसके कंटेंट्स में ये बहुत ही ब्रॉड तरीके से दिया गया है. उसको जरूर पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, क्योंकि ये 3.4.1 and 3.4.2 is highly related to that only. So यदि आप कोड ऑफ एथिक्स फॉलो करते हैं तो वो यदि लिस्टेड है तो वो आप बताएं कि क्या है आपके पास, क्या क्या फैसिलिटीज है उसके लिए. Then institution provides incentives to teachers who receive state, national and international recognition or awards. यदि है आपके यहाँ कोई पॉलिसी है इंसेंटिव्स देने की, तो उसका लेटर लगाओ और जितने टीचर्स को दिया गया है उनकी लिस्ट along with the awards वो प्रोवाइड कीजिए. Number of patents published or awarded during last 5 years. So total number of patents which have been published, year wise we have to provide the list of patents and year when it was awarded. बहुत बार होता है जब हम सबमिट करते हैं तो बोला जाता है कि सबमिट किया है हमने, पर अभी अवार्ड नहीं हुआ है, हमने सबमिट किया है. कोई बात नहीं, सबमिट किया है, उसकी भी यदि इंफॉर्मेशन आप दे देते हैं इन एडिशनल इंफॉर्मेशन, तो सामने वाले को लगता है कि कुछ तो इनिशिएटिव इनका है, सो देना चाहिए एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये. सो 3.4.4, number of PhDs awarded per teacher during last 5 years. So how many PhDs are registered within last 5 years, and how many teachers have been recognized as the guides in last 5 years? So इन सारे ये आंकड़ों के साथ उसकी लिस्ट PhD स्कॉलर्स की, टीचर्स की, गाइड की, उसके साथ जो भी टाइटल ऑफ द थीसिस है, ईयर ऑफ अवार्ड है, कंप्लीट होने के बाद की बातें, लिस्ट ऑफ PhD स्कॉलर्स, there are details like name of the guide, title of the thesis, year of the award, और ये सारी चीजें वेबसाइट पर जरूरी है. सो इसका URL देना भी मैंडेटरी होता है. 3.4.5, number of research papers per teacher in the journals notified on UGC website
during the last 5 years. Everybody knows that UGC has established the consortium. So that is UGC CARE, सबको पता है. So CARE stands for Consortium for Academic and Research Ethics for Maintenance of Reference List of Quality Journals. So here, ये जो point है, it is related to such research papers which have been published in UGC CARE. So number of research papers in journals notified on UGC website during last 5 years. So you have to provide the list of research papers by title, author, department, name, and year of publication. If you have again some additional information related to it, so you can write. Then 3.4.6, number of books and chapters in edited volumes or books published and papers in national or international conference proceedings per teacher during the last 5 years. So it is all about the gain of the in terms of the research. So ये सारी चीजें जो है एक टीचर के पर्सपेक्टिव में यहाँ हमें आंकड़ा देना है, डेटा देना है. So total number of books written by the teacher, total number of chapters, they may be in edited volumes or they may be book chapters, number of research papers which have been published in national or international conferences. If the proceedings are there, it is always good. So all these things are to be attached onto the URL as well as in the list in the e-form. So the last one here is in this particular section is bibliometric metrics of the publications during the last 5 years based on average citation index in Scopus or Web of Science or PubMed. आप सबको पता है कि बिब्लियोमेट्रिक्स क्या होता है. ये लाइब्रेरी साइंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और इसलिए हमें पता है कि कहीं ना कहीं ये पब्लिकेशंस से इसीलिए वो जुड़ा हुआ है, रिसर्च पब्लिकेशंस से जुड़ा हुआ है. ये बेसिकली अलग अलग मेट्रिक्स इसकी मेथड्स होती है. सो दीज मेथड्स आर having two, there are several methods, I must say, there are several methods to represent or to write the publication, to cite the publications, to write the references basically. But we have to follow certain standards. And those standards have been listed here by NAAC as the Scopus or Web of Science or PubMed. These are the standards basically. So bibliometric metrics of the publication during last 5 years based on Scopus or Web of Science, where the H index of the institution is mattered a lot, has to be written here, has to be flashed here, has to be, that data has to be given there. Then consultancy. So 3.5.1, institution has a policy on consultancy, including revenue sharing between the institution and the individual. कई सारे जब इंस्टीट्यूशन में हम जाते हैं इंस्पेक्शन के लिए या ऑडिट के लिए या एक्रीडिटेशन के लिए, तो ये देखा जाता है कि सब बोलते हैं हमारे यहाँ कंसल्टेंसी हम करते हैं, but there is no specific policy which they are able to show. So उसका कोई मतलब नहीं होता है. And therefore there should be a consultancy policy in written, and that has to be constructed, that has to be developed by the committee, statutory committee in the institution or university. Bodies, अलग-अलग level की bodies से ये बन के आना चाहिए. So the documents are to be uploaded related to that on the site along with the URL. As I said that DAVV के वेबसाइट पर जब आप पॉलिसी पर यदि क्लिक करते हैं तो आपको कंसल्टेंसी पॉलिसी भी मिलेगी, जिसमें गाइडलाइंस है,
बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं। जब आप काम करते हैं आपको कितना पैसा मिल रहा है, उसका कितना परसेंटेज आपको मिलेगा, कितना ऑर्गेनाइजेशन को जाएगा, कितना और दूसरे स्टाफ को जाएगा, कितना डिपार्टमेंट को जाएगा, ये हर जगह का अपना अलग अलग अपनी पॉलिसी है। तो ये आपको डिसाइड, आपके इंस्टीट्यूट को हायर लेवल पर अप्रूव करना होता है और ये हमें यहाँ लोड करना होता है। सो 3.5.2 रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द कंसल्टेंसी ड्यूरिंग लास्ट 5 years, जो भी हमें पैसा मिला है दैट इज अ रेवेन्यू। सो कितना जनरेट हुआ है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट जनरेटेड फ्रॉम द कंसल्टेंसी, ईयर वाइज यू हैव टू गिव द डेटा। सो लिस्ट ऑफ कंसल्टेंट्स, रेवेन्यू जनरेटेड बाय देम, देन ऑडिटेड स्टेटमेंट्स। ऐसा नहीं हमने मन से बना दिया, कुछ भी लिख दिया और ये नहीं, हमें स्टेटमेंट्स लगते हैं, ऑडिटेड स्टेटमेंट्स लगते हैं, जो सारा, यदि ऑडिटर ऑडिट करता है तो उसको एक एक पेपर लगता है और सारी जितने भी उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस होते हैं वो देखकर और वो बताता है कि यस दिस इज ऑथेंटिक वन, और इसीलिए ऑडिटेड स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स उसके लगते हैं। रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग बाय द इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग लास्ट 5 years. So total amount generated from the corporate training by institution year wise during last 5 years. You have to provide the list of teacher consultants and revenue generated by them. Again, you need to attach the audited statements of account indicating how much revenue has been generated through this activity. And the last point is extension activities. Earlier it was not this, this subsection was not there in this criteria, but now it has been added since past I think 1 or 2 years. So मेरे ख्याल से अभी किया है ये। So extension activities, जहां बहुत ज्यादा रिसर्च की एक्टिविटीज की संभावनाएं नहीं होती है, उन लोगों के लिए मेरे को ऐसा लगता है इट इज अ बून। स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस में मैं जनरलाइज स्टेटमेंट दे रही हूँ, कोई माइंड नहीं करे, पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में नॉर्मली रिसर्च कंपोनेंट्स जो है वो थोड़ा लो रहता है। सो क्राइटेरिया 3 में तकलीफ होती है कि हम क्या इसमें डेटा दें। उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहना चाहूंगी कि नाउ द एक्सटेंशन एक्टिविटीज, देखिए इंप्रूव तो करना है और तभी हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारी इंस्टीट्यूट भी इंप्रूव होगी, पर उसके साथ में एक यहाँ और ये एक्सटेंशन एक्टिविटीज का पार्ट डालने से यू नो व्हाट हैज हैपेंड, हमको एक ये एक हमें अच्छी क्या बोलते हैं, एक अच्छा टूल मिल गया है कि जिसके जरिए हमें अच्छे मार्क्स भी मिलने की उम्मीद हो जाती है, पर्टिकुलरली इस सेक्शन में। सो एक्सटेंशन एक्टिविटीज इन द नेबरहुड community in terms of impact and sensitizing students to social issues and holistic development during last 5 years. कई सारी एक्टिविटीज आजकल हम स्टूडेंट्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए करते हैं और वो सारी एक्टिविटीज हम इस पर्टिकुलर सबसेक्शन में लिख सकते हैं। आप लोग सोसाइटी के लिए जो कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात जो लोग स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस है या एफिलिएटिंग इंस्टीट्यूशंस है, स्टेट यूनिवर्सिटीज की, आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेट गवर्नमेंट से भी HEIs से सबको लेटर आ रहे हैं कि इन एक्टिविटीज को समय समय पर करें, ऑर्गेनाइज करें। सो मोस्ट ऑफ देम दोज एक्टिविटीज आर फॉलोइंग into or falling basically into this extension activities. So we can, and see date wise activities are to be conducted. यदि हम वो भी करते हैं तो you can very well you can very well include those activities into this, because all those are for the holistic development of the students. The another one is extension activity for local community. हमारे आसपास जो कम्युनिटी है उसके लिए हमारे स्टूडेंट्स, दो स्टूडेंट्स में भी द रिसर्च स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, स्पेशली जो सोशल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करके और क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं
और नॉर्मली जब ऐसी बात करते हैं तो एनएसएस सामने आता है। एनएसएस से एनएसएस जितनी भी एक्टिविटीज करता है वो मोस्टली हमारे आसपास के लोकल कम्युनिटी के लिए करता है। सो वो भले ही आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की से रिलेटेड हो, वो भले ही नेशनलिज्म से रिलेटेड हो, वो भले ही हेल्थ से रिलेटेड हो, सारे एजुकेशन से रिलेटेड हो, वोकेशनल ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, ऑल दीज एक्टिविटीज they may be included in this extension activities for local committees. So ये हम लोग जो है जो हमारी यूनिवर्सिटीज में हमारी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स ने जहां जो काम किया है उसमें से कुछ चीजें जो है हमने यहाँ लिखी हुई है फॉर द एग्जाम्पल पर्पस। इवन हम नहीं सोचते हैं कि ये भी हम लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड क्लोथ्स, बुक्स एक्सेट्रा टू नीडी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, and it should be done in the regular manner. करते हैं हम लोग हमारे स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस में। मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ा ऐसा बॉक्स रखा है और उसमें बच्चों को बोल के रखा है कि आप जो कपड़े नहीं पहन रहे, जो आप नहीं पहन रहे, फटे वगैरह नहीं होना चाहिए, अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। पर ऐसा होता है आजकल बच्चे बहुत बार पहन लिया, अब लगता है कि भी थोड़ा फेड हो गया है तो अब नहीं पहनना इसको, तो उसको फेंको नहीं, उसको इस बॉक्स में डालो ताकि ऐसा नीडी जिसके तन पे कपड़ा नहीं है तो कम से कम वो पहन सके। तो बहुत अच्छा हमारे बच्चे ये सब एक्टिविटीज चलाते हैं। इट इज अ गुड प्रैक्टिस। यदि ऐसा भी हम करते हैं तो ये भी एक्टिविटी हम लोग इस पर्टिकुलर सेक्शन में डाल सकते हैं। देन सेंसिटाइजिंग स्टूडेंट्स टू सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज और क्या क्या हो सकते हैं? बीच में बहुत ज्यादा स्पेशली यंग लड़कियों के साथ में, स्कूलिंग गर्ल्स के साथ में बहुत प्रॉब्लम्स सामने दिखाई दे रही थी हमारी सोसाइटी में, और इसलिए उनको एम्पावर करने के लिए कई सारे जो है प्रोग्राम्स, आपको सबको पता है, गुड टच बैड टच, स्कूल से शुरू होकर और कॉलेज लेवल तक चला है। स्मार्ट गर्ल्स का इनिशिएशन, स्मार्ट गर्ल्स, फिर जेंडर इक्वेलिटी, जेंडर इक्वालिटी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस के बारे में बताएं, जो महा बीमारियां जिसको बोलते हैं, बहुत भयावह बीमारियां हैं, कैंसर जैसे, तो उसके लिए हम लोग अवेयरनेस फैला सकते हैं। फूड वेस्टेज, उसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? नुक्कड़ नाटक के जरिए बताएं, उनको कॉम्पिटिशन्स करवाएं उनकी, है ना, जो जिस तरीके से हम लोग अवेयरनेस ला सकते हैं सोशल इश्यूज को टच करने के लिए, और वो हमारे स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, सेंसिटाइज होने चाहिए बच्चे उससे। सो वी कैन ऑर्गेनाइज दोज थिंग्स। सो these are all extension activities which मैंने कुछ examples दिए। Then 3.6.2 number of awards or recognition received from extension activities from government or recognized bodies during last 5 years। यदि ऐसे कुछ हमें अवार्ड्स मिले इन एक्सटेंशन एक्टिविटीज में, बहुत बार हमारा एनएसएस विंग जो है बहुत अच्छे काम करता है, हाई लेवल के काम करता है और कई सारे अवार्ड्स मिलते हैं, तो वो सारी हमको यहाँ वो डेटा देना है, नंबर ऑफ अवार्ड्स for extension activities and the letters, or if you have any other pics, so you can images, हमारे पास जो pictures होंगे वो भी हम यहाँ लगा सकते हैं। So number of extension or outreach programs conducted in collaboration with industry, community and NGOs through NSS, NCC, Red Cross, YRC etc. during last 5 years। सेम टाइप की एक्टिविटीज यदि आप किसी के साथ में कर रहे हैं, किसी कोलैबोरेटिव मॉडल में कर रहे हैं, तो वो भी आपको डेटा पिछले 5 साल का यहाँ देना होगा। So average percentage of students participating in extension activities with the government organizations, NGOs and programs such as Swachh Bharat, AIDS awareness, gender issue etc. during last 5 years। So इसका भी डेटा हमें 5 साल का देना पड़ता है।
So like this, okay, see, this one is the last, I think. Yes, collaboration. So number of collaborative activities for research, faculty exchange, student exchange per year. So आपको बताना होगा how many number of such activities have been performed for the researchers or for faculty students exchange year wise basically. So ये इसका भी हमको डेटा देना है. नंबर ऑफ लिंकेजेस विद द इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्रीज फॉर इंटर्नशिप. ये नॉर्मली जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं इनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और आजकल तो सारे इंजीनियरिंग कोर्सेस में ये दिखाई देता है कि एक सेमेस्टर जो है पूरा डेडिकेटेड इसी के लिए किया है, और इसलिए मेरे ख्याल से बड़ा स्ट्रेंथनिंग पार्ट हो गया है ये from that point of view. Number of functional MOUs तो करवा लेते हैं हम पकड़ लेते हैं बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को, आइए हमारे साथ MOU करिए, डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, फोटो निकाल लेते हैं, लगा देते हैं. बट अब जो है, अब यहाँ इस बार लिखा हुआ है नंबर ऑफ फंक्शनल MOUs. सिर्फ आपको दिखाना नहीं है लेटर्स, उस MOUs के तहत आपने क्या क्या काम किए हैं. ये आपको ई कॉपीज ऑफ MOUs विद इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्री और कॉर्पोरेट हाउस, डिटेल्स ऑफ फंक्शनल MOUs with the institutions of national, international importance or other universities during last 5 years. ये आपको देना है. यानी उस 5 सालों में आपने जो की हुई एक्टिविटीज है उसका पूरा डेटा देना है. सिर्फ हमको ई कॉपीज निकाल के नहीं देना है. So I complete here all the contents which for which I was responsible. Yes. Is there any question, please? Madam, I think everything was smooth and I was audible also. Of course, ma'am. हम आपकी ऊर्जा से अभिभूत हैं. आप मतलब we thoroughly enjoyed the entire technical session. So these were the words of inspiration, full of energy from our esteemed speaker. My heartful thanks and gratitude on behalf of the entire SICA team of Bhoj University, madam, for delivering such an insightful lecture. I guess and hope all the participants who are joined on this platform can gain huge insight from this valuable discussion. NAC की तैयारी एक सतत और कंटिन्यूअस प्रक्रिया है और इसमें किसी भी शिक्षण संस्थान के हर शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारी का भाग लेना और परस्पर जुड़े रहना अत्यावश्यक है. Thank you, madam, and we offer deep gratitude from our team for such a beautiful lecture, supported with wonderful illustrated PPTs. You inspired and mobilized all the participants along with us for research and research in their respective areas. And I also call upon all the academicians who joined on this platform from different institutions who are on this platform to prepare a roadmap for research and innovation in their institutions. So नवाचार हो, प्रयोग हो, शोध हो, innovations हो, शोध कार्य मगर जनहित से जुड़े हों, जैसा कि आपने बताया, जनोपयोगी हो, क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए, सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए रिसर्च हो, ताकि समाज के प्रति जो हमारा शिक्षण संस्थाओं का जो दायित्व है उसकी हम पूर्ति कर सकें. सो एक बार फिर से हमारी पूरी सीका टीम की तरफ से मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. मैं जुड़े हुए सभी पार्टिसिपेंट, सभी प्रतिभागियों को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ. मेनी थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स फॉर गिविंग देयर टाइम एंड जॉइनिंग फॉर दिस वंडरफुल सेशन. सो वी सी यू ऑल इन द आफ्टरनून एट 3. आप अपने क्वेश्चंस, अपने क्वेरीज कृपया चैट बॉक्स में दें. मैडम एक प्रश्न है जी. लोग, मैं ये यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, लोग आपके सेशंस की तारीफें बहुत कर रहे हैं. दे आर जस्ट फुल ऑफ एप्रिसिएशंस. चैट बॉक्स में प्रश्न एक आया है अभी, और जो हमारे पास उत्तरोत्तर आते जाएंगे तो मैं आपसे वो शेयर कर दूंगी. फिलहाल जो प्रश्न है मैं आपसे शेयर करती हूँ. जस्ट अ मिनट मैम.
क्वेश्चन डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी जी ने हैंड रेज किया है मैडम जी। उनको म्यूट किया है क्या? उनको बोलिए, उनको अनम्यूट करो। उनको डॉक्टर ओम प्रकाश तिवारी को अनम्यूट करें प्लीज। नहीं जाने दीजिए। मैडम कुछ टेक्निकल इश्यूज है, वो नहीं आ पा रहे हैं। मैं सबको एक जगह कलेक्ट कर लेती हूँ। आई विल शेयर विद यू। ओपन फोरम में आपसे हम डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो थैंक यू मैडम। मेरे को निकलना है, मेरी फ्लाइट है थोड़ी देर से, तो मेरे को निकलना है। आप प्लीज क्वेश्चंस लेके रखें। डेफिनेटली आपका ये कोर्स खत्म होने के पहले मैं सबका जवाब दूंगी। जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। पार्टिसिपेंट्स के लिए जो सूचना है उसमें एक रिक्वेस्ट हमारा जरूर है कि आप अपने अप्रिसिएशंस के साथ साथ इस सेशन से जुड़े हुए जो आपके प्रश्न हैं उसको जरूर चैट बॉक्स में डालें, क्योंकि हमारे जो स्पीकर्स हैं, जो स्टीम स्पीकर्स हैं, NAAC के ऊपर विशेषज्ञता है उनकी, और वो आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए काफी उत्साहित हैं। तो कृपया आप अपने प्रश्न उसमें जरूर डालें। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो हैं वो मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए एक अनुरोध जरूर करूंगी कि आप सभी अपनी पूरी संख्या में इस कार्यक्रम से समय पर जुड़ जाएं। तकनीकी सत्रों में लिंक वही रहेगी, लिंक में कोई चेंजेस नहीं है। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि कम से कम 80% उपस्थिति होनी चाहिए आपकी। उसके बाद अंत में एक ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा, उसमें न्यूनतम 60% अंक आपके 60% मार्क्स की अनिवार्यता रहेगी, सो दैट कि इस नेशनल वर्कशॉप की हम प्रमाण पत्र आपको हम मुहैया करा सकें। सभी प्रतिभागी जिनके NAAC से संबंधित, सेशन से संबंधित जो भी प्रश्न हैं आपके, आप कृपया अपने संस्थान का नाम, अपने इंस्टीट्यूशंस का नाम, अपने एफिलिएशंस, अपने क्लियरली आपके प्रश्न, ईमेल आईडी चैट बॉक्स में जरूर भेजें। हमारे विशेषज्ञों की टीम एक ओपन फोरम में इन सब का समाधान करेगी। आगामी 12 मार्च को ओपन सेशन होगा, जिसकी सूचना हम आपको हर कार्यक्रम में, हर सेशन में देंगे। और अंत में इस कार्यशाला के तीसरा दिन है इस कार्यशाला का, और इसका दूसरा तकनीकी सत्र 3 बजे शुरू होगा। इसके पहले सत्र में NAAC के क्राइटेरिया 4 एवं दूसरे सत्र में NAAC के क्राइटेरिया 5 के विषय पर विस्तृत चर्चा होगी। 3 से 5 2 तकनीकी सत्र होंगे, 4 और 5 क्राइटेरिया के ऊपर। और इसके जो विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर SP शुक्ला सर, जिनको पहले भी सुना आपने, और दूसरे सत्र में डॉक्टर संजय स्वर्णकार होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत रहेगा 3 बजे वाले सत्र में। सो सी यू इन द आफ्टरनून sharp at 3. Thank you so much.